Dear students, in last class we studied about electromagnetic induction, and we used to say electromagnetic induction is the phenomenon of induction of electric current in a coil due to change in magnetic flux crossing through it. It means that अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी यू कैन से कि किसी भी क्लोज सर्किट लूप सर्कुलर लूप है और अगर उससे जो है फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस लूप में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा. राइट? व्हाट वी हैव स्टडीड, आई एम रिकैप्चुलेटिंग दैट वन. let us suppose you have a magnet. Let us suppose it is north pole and here you have south pole. Then due to this very magnet there will be field lines, and all field lines will emerge from the north pole and enter at the south pole, and inside the magnet it is from south to north. Outside the magnet it is from north to south, north to south, north to south, in this manner. And let us suppose in this very magnetic field we have placed a circular current carrying loop. We have placed a circular current carrying loop. अगर circular current carrying loop हमने रखा है, then what will happen? Few number of field lines will cross through it. इससे कुछ field lines cross करेगा. It means that there will be association of some flux with this very closed loop. Right? And now let us suppose we are moving our loop away from the magnet. मैग्नेट से हम लोग अपने लूप को दूर भगा रहे हैं. Then what will happen? Field will decrease, field lines will decrease. It means that flux will decrease or not. Flux will decrease. It means that there will be change in flux. So there should be induced EMF as well as induced current. हमने यह भी पढ़ा था कि when circuit will be closed, then there will be induced current as well as induced EMF. But when, let us suppose at any point your circuit is open, मान लो कि कहीं पर सर्किट तुम्हारा ओपन है. अगर सर्किट हम लोग ओपन कर दें, राइट, अगर हम लोग सर्किट ओपन कर दें, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? अगर सर्किट हम लोग ओपन कर देंगे, इट मीन दैट now there will be no flow of current. करंट का फ्लो नहीं होगा. बट यू टेल मी फील्ड लाइन्स इज क्रॉसिंग और नॉट, बट देयर विल बी नो करंट. रियली अगर क्लोज्ड होता तो इंड्यूस्ड करंट होता, इंड्यूस्ड फ्लक्स होता. लेकिन अगर हम लोग लूप को कहीं पर कट कर दे रहे हैं, देन नाउ आवर सर्किट हैज़ बिकम ओपन, सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. It means that when circuit will be open, there will be no induced current. It means that more basic fundamental thing is creation of induced EMF, right? Creation of induced EMF. अब जरा सा जो ये क्लोज लूप है, लेट अस सपोज जो हमने थोड़ा सा जो है हमने ब्रेकिंग दिखाया नीचे में, और उस ब्रेकिंग को मैं धीरे धीरे बड़ा करते जा रहा हूँ. लेट अस सपोज नाउ योर लूप इज इन दिस मैनर, देन अगेन इट इज ओपन, सो अगेन देयर विल बी नो करंट, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF और नॉट इंड्यूस्ड EMF. और हमने किया थोड़ा सा हम लोग जो है क्लोज को जो है हम लोग बड़ा करते जा रहे हैं, क्लोज पार्ट को कम करते जा रहे हैं, राइट. देन अगेन देयर विल बी नो करंट, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF, राइट. ऐसा करते करते लेट अस सपोज हमने वायर को स्ट्रेट कर दिया, कंप्लीट स्ट्रेट कर दिया. देन क्वेश्चन इज दिस कि विल देयर एनी इंड्यूस्ड करंट? देन वी कैन से नो, देयर विल बी नो करंट, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. It means that when in a magnetic field, a conducting rod will move, then there will be induced EMF.
there will be creation of induced EMF, there will be creation of potential difference across its ends, right? Now we are going to study motion of a straight conductor in a uniform magnetic field. And then you tell me, when a straight conductor will move in a magnetic field, then what will happen? There will be induced EMF, there will be induced potential difference. In this very topic, we will study what will be value of that very induced पोटेंशियल डिफरेंस, वह पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस होगा कितना होगा उसकी वैल्यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वेरी थिंग. See this very figure. Let us suppose in this very figure there is a magnetic field, there is a uniform magnetic field, right? And direction of the field is towards the blackboard. Here we have mentioned cross sign. It means that there is magnetic field inside the loop, right? इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड में यह जो इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ब्लैक बोर्ड. और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को रखा है. स्ट्रेट कंडक्टर को मीन्स स्ट्रेट वायर को रखा है विच इज मेटेलिक इन नेचर, विच इज कंडक्टिव इन नेचर, राइट? नाउ वी आर अलाउइंग टू मूव दिस वेरी कंडक्टर in a magnetic field, in this very magnetic field with velocity v, right? इस कंडक्टर को हम लोग v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर मूव करा रहे हैं. नियर अबाउट केस इज सेम. इन अ मैग्नेटिक फील्ड a wire, a straight wire is in motion with velocity v. Then it is sure that there will be induced EMF or not. होना चाहिए. कितना होगा? We will find. Now come over wire. Length of the wire is L. Upper portion of the wire is, let us suppose, J, and lower portion is K, right? अब जरा सा देखेंगे. Now your wire is in motion. Now your conductor is in motion with velocity v along right direction. It is well known fact to you all that a metallic wire is composed of large number of atoms. एंड इन केस ऑफ मेटल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एटम से बाहर आ जाते हैं और एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और जो इलेक्ट्रॉन होता है दे आर इन रैंडम मूवमेंट थ्रू आउट द मेटल, राइट? नाउ कम ओवर कि व्हेन योर वायर विल मूव, व्हेन योर कंडक्टर विल मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, देन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स विच हैव कम फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम एंड देयर रिस्पेक्टिव पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑल विल मूव टुवर्ड्स राइट. क्यों? क्योंकि वायर मेरा राइट की तरफ मूव कर रहा है. सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विल मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट? देन नाउ व्हाट विल हैपन? इट मीन दैट कैन वी से दिस इज द केस इन विच यू कैन से देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन इन राइट डायरेक्शन. कैन वी से? तो हमने पढ़ा है इफ चार्ज पार्टिकल्स आर इन मोशन विथ समथिंग वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट वेरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. पढ़े होंगे फार्मूला. वी यूज टू राइट F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. We used to write F equal to Q V cross B. Now see here, magnetic field is in downward direction and velocity of different electrons as well as positive nucleus is along right direction, right? So all positively charged nucleus as well as electrons will experience force, right? Question is this कि क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, क्या मैग्नीट्यूड होगा? देन वैल्यू विल बी इक्वल टू F इंटू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन theta, and here where theta is the angle between V and B. Here V is along right direction and B is in downward direction. Theta is 90 degree. So force will be equal to F equal to Q into V into B. Right? इतना होगा, इतना फोर्स लगेगा
right? Question is this कि what will be direction of the force? Then first come over positively charged nucleus. Force experienced by positively charged nucleus will be equal to QVB. And what will be direction? Then we can say direction can be obtained by formula F equal to QV cross B. Then V cross B, positively charged, will experience force towards point J, towards end J of the rod. And negatively charged किधर एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ Q माइनस Q बन जाएगा. इट मीन दैट डायरेक्शन ऑफ F will become opposite. It means that force will be same, F equal to QVB, but it will be towards point K or not. तो अब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट एंड दे आर मूवेबल इन नेचर, सो दे विल मूव. बट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आर रिजिडली टैग्ड विद ईच अदर, सो दे विल नॉट मूव. It means that what will happen overall, what will happen, then we can say, what you will say, इस पूरे एटम में जितने, जिस पूरे मटेरियल में, इस पूरे रॉड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल एक्सपीरियंस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट J टू K. J से K की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सो दे विल स्लाइड फ्रॉम पॉइंट J टू K. तो J से K की ओर स्लाइड करेगा, देन व्हाट विल हैपन, रीजन K और एंड K विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, whereas end J will become positively charged. Question is this कि how can you say? तो जरा सा देखोगे, शुरू में मेरा न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, जब जो है नीचे की ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा, तो क्या होगा कि जो है, अभी तो शुरू में यह कहा जाए कि हर एक जगह मानता हूँ इलेक्ट्रॉन्स मेरा रैंडम मूवमेंट में है, लेकिन ऑन एन एवरेज वी कैन से जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा एक एंड पर, वहीं दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम ऑन एन एवरेज. बट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम J साइड टू K साइड, सो दे विल रश टुवार्ड्स एंड K. तब क्या होगा, K जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और J पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि J एंड पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर गया होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो शिफ्ट नहीं करेगा, सो दैट वेरी एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज और नॉट. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, यह जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, यह जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा FB, दैट विल बी सेम, वह मेरा सेम होगा और जो है दैट विल बी ऑलवेज सेम, और वह इस तरह से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट करता जाएगा. मीन्स इंड J जो है वह मेरा जो है पॉजिटिवली चार्ज बनता जाएगा और K जो है नेगेटिवली चार्ज बनता जाएगा. विद पैसेज ऑफ टाइम इंड्स विल बिकम रिच, J end will become richer in positively charged, whereas K end will become richer in negative charge, right? लेकिन शुरू में क्या होगा, जिस समय मोशन शुरू हुआ होगा उसमें मान के चलिए कुछ नहीं होगा, कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम चार्ज का सेपरेशन होता जाएगा. और जब चार्ज का सेपरेशन होता जाएगा, चार्ज का सेपरेशन होता जाएगा, चार्ज का सेपरेशन होता जाएगा, देन व्हाट विल हैपन कि जो है चार्ज का सेपरेशन होता जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के चलते एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड के चलते जो फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी टुवार्ड द चार्ज. इट मीन दैट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड inside the wire, and that will be from end J to end K, right? That will be from end J to end K. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, चार्ज का जो है एक्युमुलेशन एंड J और K पर जो है बढ़ता जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली फील्ड विल इंक्रीज और नॉट. अब नाउ टेल है कि जब मेरा फील्ड मेरा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, तो आपने यह पढ़ा है कि जैसे जैसे मेरा फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा,
देन व्हाट विल से कि इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं जो इस रीजन में है, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इन फील्ड और नॉट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट। इस फील्ड में जो है जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। नाउ कम ओवर इन वी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो सबसे पहले आ जाओ सी दिस वेरी पॉजिटिव चार्ज, इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है एफ एम दैट इज टुवार्ड्स एंड जे, जिसके चलते वह जे एंड की तरफ मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सपीरियंसिंग मैग्नेटिक फोर्स टुवार्ड्स पॉइंट के, इसलिए एफ एम जो है देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। नाउ इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम टॉप टू bottom, and we know that a positive charge experiences force along the field whereas a negative charge experiences force opposite to the field. It means that this very positive charge, see here, this very positive charge will experience force along the field. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड अ निगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, मीन्स यह जो निगेटिव चार्ज है वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। निगेटिव चार्ज पर जो है मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, राइट? Now come over कि what will happen, now come over what will happen with to electric field, means to electric force with passage of time. अभी आपने यह कहा था with passage of time accumulation of charges over ends will increase, so electric field will increase, so electric force will increase or not? But what you will say about magnetic force? Magnetic force equal to F equal to Q V cross B, which is equal to Q into V into B. Q is not changing, V is not changing, B is not changing, so magnetic force will not change. It means that with passage of time there will be no change in magnetic force, but with passage of time there will be increase in electric force. होगा या नहीं होगा, राइट? इसका मतलब क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इट मीन दैट ए सिचुएशन विल कम, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ओवर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एंड व्हेन बोथ विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इट मीन दैट नाउ देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ चार्जेज। अब चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, जितना हो गया सो हो गया। तो लेट अस सपोज जो भी हुआ, मीन्स कुछ निगेटिव चार्ज जे एंड पर आया, कुछ निगेटिव चार्ज के एंड पर आया, और कुछ निगेटिव चार्ज जो है जे एंड पर एक्यूमुलेट हुआ, एंड नाउ देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेज। अब नहीं होगा, व्हेन बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल टू ईच अदर। अब नहीं होगा, लेकिन हो क्या गया है? नाउ योर जे एंड हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज and K end has become negatively charged or not. Here separation of charges has taken place. इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और आपने यह पढ़ा है अगर किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों पॉइंट के बीच में जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे होगा? देन यू कैन से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज there will be positive potential, and that due to negative charge there will be negative potential. It means that here is existence of potential difference across the ends of the wire. It means that we can say when a straight conductor moves in a magnetic field, then there is creation of potential difference across its एंड्स। इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेवलप करेगा, एंड दैट वेरी डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी इट्स मैथमेटिकल वैल्यू? देन कम ओवर
come over to what will be magnetic force which will be experienced by different free electrons, then we can say F will be equal to QV cross B, which is equal to Q into V into B into sine 90, right? What will be direction of force on electrons? Then we can say force over electrons will be towards K end, right? Will be towards K end. It means that force over electrons will be equal to QVB, and that is towards K. Now question is this, what will be value of force on positively charged nucleus? Then we can say again they will be equal to QVB, क्योंकि उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वेलोसिटी वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, बट डायरेक्शन विल बी टुवार्ड्स जे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के तरफ और नेगेटिव चार्ज जे के तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? नाउ कम ओवर, इट मीन दैट नाउ देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges, and due to this very separation of positive and negative charges there will be creation of an electric field, और जब electric field create होगा then it is sure that there will be creation of potential difference also between point J and K. Question is this, what will be direction of field? What will be direction of field? Then we can say direction of field will be from positive to negative, and direction of field will be from positive to negative, राइट? तो अगर फील्ड क्रिएट हुआ है इट मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, बिकॉज हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डी वी इक्वल टू ई डी आर. सो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी विल बी इक्वल टू जो डी वी को अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ कहते हो देन इट विल बी इक्वल टू ई इंटू डी आर, एंड डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. So it will be equal, and here length of the rod is L, so potential difference developed will be equal to V equal to E into L, right? अब शुरू में जिस समय जब मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हुआ होगा, चार्ज पर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगना शुरू हुआ होगा, तो जो चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हुआ होगा, और जब चार्ज सेपरेशन होना शुरू हुआ होगा तो इंड्स पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का. पॉजिटिव चार्ज के चलते नेगेटिव चार्ज के चलते फील्ड क्रिएट होगा, एंड इनिशियली देयर विल बी क्रिएशन और देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एट द इंड्स, सो फील्ड क्रिएटेड विल बी आल्सो अ स्मॉल. इनिशियली देयर विल बी वीक फील्ड, बट with increase in separation of charges, it means that you can say with increase in passage of time there will be increase in separation of charges due to magnetic force, and due to which field will also increase. Due to this very field, जो और सभी से चार्ज अभी बीच में जो मूव कर रहे हैं, they will experience force. They will experience electric force due to electric field, and direction of electric force will be oppositely directed to magnetic force on any charged particle. किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, वह इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स जो उस पर लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स. लेकिन शुरू में मैग्नेटिक फोर्स में देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स, but with passage of time there will be change in electric force, and a situation comes when both becomes equal to each other, and when both becomes equal to each other, that very condition is known as condition of equilibrium. We used to say force due to electric field over any charged particle will be equal to F dash. मैग्नेटिक फोर्स को अगर F कह रहे हो तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स को F डैश कह दो, देन इट विल बी इक्वल टू Q इंटू E. हम लोग पढ़े हुए हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई Q चार्ज प्लेस करते हैं देन दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E. अभी हमने कहा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बट देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फोर्स विल इंक्रीज, एंड ए सिचुएशन कम्स when both becomes equal to each other.
That very situation is known as situation of equilibrium, and we used to write at equilibrium electric force becomes equal to magnetic force, right? It means that F dash will be equal to EF, and F is your electric force QE, F is your magnetic force QVB. It means that we can say QE will be equal to QVB, right? और E इक्वल टू आपने क्या कहा, DV इक्वल टू EDR, सो वी कैन राइट E will be equal to V by L. So your expression will become Q into V by L इक्वल टू QVB. दोनों साइड से Q कैंसिल कर देंगे और L को RHS की तरफ ले जाइए. इट मीन दैट V will be equal to BVL, where V is V of left side is potential difference developed, which is equal to B, magnetic field in which your rod is placed, B, velocity with which your rod is in motion, and L is length of the magnetic field. It means that we can say when we place a rod of length L, or when a magnetic rod of length L is in motion with velocity V in a magnetic field B, then there is creation of potential difference across its ends, and value of that very potential difference is V equal to BVL. V equal to BVL means potential difference developed is equal to BVL, right? इट मीन दैट यहाँ पर क्या लग रहा है, जरा बाबू ध्यान से तो देखो. तो अगर हम लोग जो है याद करो, एकदम शुरू वाले एक्सपेरिमेंट को याद करो, जो है जो मैग्नेट वाला और कॉइल वाला है. मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता था कॉइल से पास करता था, तो उससे जो है फील्ड लाइंस क्रॉस करता था, फ्लक्स चेंज होता था. तो कहते थे कि जो है EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. जब हमने नीचे में कट कर दिया, एक कोने में कट कर दिया, तो जो है सर्किट ओपन हो गया. इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, लेकिन इंड्यूस्ड EMF होगा, राइट. और जो हम लोग कट को बड़ा करते जाएं तब भी इंड्यूस्ड EMF होगा. कट को करते करते एकदम सीधा कर दिए तो हम लोग कह दिए, यू कैन से कि जो है क्या कहते हो कि देयर विल बी, वहाँ भी हम लोग देखे थे देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. लेकिन यहाँ पर जो हमने फिगर देखा था, इसमें सिचुएशन डिफरेंट था. मतलब वहाँ पर जो हम लोग दिमाग में बिठा रहे थे, इसका मतलब व्हेन मोशन ऑफ द रॉड विल बी अलोंग द फील्ड, ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे. लेकिन यहाँ पर जो हमने फिगर दिखाया था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रॉड वाज इन मोशन हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द फील्ड. था या नहीं था? तो मैग्नेटिक फील्ड तो जो है क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, जब इस जो फिगर को ध्यान करो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. इसका मतलब कह रहे हैं क्या, जब रॉड मूव कर रहा होगा तो फील्ड लाइंस को कट कर रहा होगा. इट मीन दैट कैन वी से इफ ए कंडक्टर कट्स ए फील्ड लाइंस, देयर इज इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट्स एंड्स. अगर कोई कंडक्टर जो है फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसके एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस कर होगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, राइट. If a conductive wire of length L is in motion with velocity V in a magnetic field B, potential difference developed across its ends will be equal to or is equal to BVL. अगर कोई L लेंथ का वायर V वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड मूवमेंट ऑफ द वायर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. क्वेश्चन इज दिस, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा? देन वी यूज्ड टू से यस, देयर आर मेनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. लेट अस सपोज वन एग्जाम्पल इज, let us suppose your train is in motion over the track, right. Then think over axle of the wheel के एक्सल के बारे में सोचो, that will be also in motion, horizontally वह मूव करता जाएगा. And think over earth's magnetic field. आपने यह पढ़ा था
at each and every point, we can divide Earth's magnetic field into two directions, one along the surface of the Earth and second perpendicular to the surface of the Earth. तो जरा सा ध्यान से देखो तो अर्थ पर अपना फिगर ले जाओ, जो है जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जब तुम्हारी ट्रेन चल रही होगी तो उसका जो एक्सल होगा दैट विल कट दिस वेरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और नॉट. Here your moving axle of the wheel is cutting vertical field lines, so there should be induced potential difference across the ends of the axle of the across the axle or not. होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, राइट. अनदर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज आपका जो है, आप एक फ्लाइट चल रही है, स्पेस में उड़ते चली जा रही है, एंड देन यू टेल मी जो एरोप्लेन होगा उसके जो विंग्स होंगे, अगेन दे विल कट वर्टिकल फील्ड लाइन्स और नॉट. यस, दे विल कट वर्टिकल फील्ड लाइन्स. वो लोग वर्टिकल फील्ड लाइन्स को कट करेगा. थिंक ओवर द सिचुएशन, एरोप्लेन चला जा रहा है, उसके विंग्स फैले हुए हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा नहीं करेगा? करेगा. It means that again across the ends of the wings of the aeroplane there should be creation of potential difference. Come over another example. Potential difference developed across the ends of a dropping conducting rod directed east west. Let us suppose you have a conducting rod, right? एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि ऊपर से हम लोग जो कि ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में है, और जो है हमने ऊपर से गिरा दिया. अब जरा सा अपना दिमाग अर्थ पर ले जाओ. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या होगा, फील्ड लाइंस जो होगा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल करके मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा. जाएगा नहीं जाएगा? इट मीन दैट यू कैन से देयर विल बी फील्ड लाइंस along north to south direction. और अगर ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग एक करके एक रॉड को आपने ऊपर से गिरा दिया, देन दे विल कट हॉरिजेंटल फील्ड लाइंस और नॉट, हॉरिजेंटल फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ और नॉट. देन देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड और नॉट. यस, देयर विल बी क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस along the length of the means across the ends of the rod, right? It means that overall we have to consider कि when a state conductor moves in a magnetic field, when a state conductor cuts field lines, then there is development of potential difference across its ends, which is equal to BVL, where B is magnetic field, V is velocity, and L is the length of the rod, right? Okay.